Hello everyone. Today we are going to talk about a new topic that is a linkage group. Earlier we have talked about the linkage, ठीक है, complete linkage and incomplete linkage. Now next in the series is a linkage group. ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें लिंक जीन्स ग्रुप बना करके रहते हैं, ठीक है. So all the genes, here we go, all the genes in a particular chromosome forms a linkage group. किसी भी क्रोमोसोम में पाए जाने वाले सारे जीन्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. Since the genes in a particular chromosome have their alleles in the corresponding homologous chromosome, तो बेटा उनका जो corresponding homologous chromosome होगा उस पर उन जीन के alleles भी होंगे. A pair of homologous chromosome are said to form a single linkage group. तो इस तरीके से जो पेयर बनेगा, pair of homologous chromosome, you can consider it as a one chromosome you got from the father and the one another one from the mother. So when they will be clubbing together, then they will be making the homologous chromosome and they will be said to form a single linkage group. ठीक है. Thus the genes occur in as many linkage group as these are पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो जितने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर होंगे उतने ही उनके लिंकेज ग्रुप्स होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले सारे जीन्स जो है वो लिंक ग्रुप बनाते हैं एक. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन अ स्पीसीज करस्पॉन्ड टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. तो किसी भी स्पीसीज में पाए जाने वाले जो लिंकेज ग्रुप है वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के क्रोमोसोम के हैप्लॉइड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स. ठीक है. सिंस साइज ऑफ द लिंकेज ग्रुप डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ क्रोमोसोम. तो बेटा लिंकेज ग्रुप का साइज जो है, कितना बड़ा ग्रुप है वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा क्रोमोसोम है, क्योंकि उस पे ऊपर उस क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले सारे ही जीन्स लिंक ग्रुप बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. तो बेटा जितना बड़ा ग्रुप मतलब उतना ही बड़ा क्रोमोसोम. देयरफॉर स्मॉल क्रोमोसोम हैव स्मॉल लिंकेज ग्रुप्स एंड लार्ज क्रोमोसोम्स हैव लार्ज लिंकेज ग्रुप. तो एज पर दिस वन, तो whatever the size of the chromosome will be there, the same size will be there of the linkage group. The human X chromosome carries 102 genes, whereas Y chromosome bears only 10 genes. तो बेटा X chromosome पे, this is important for you, learn it properly, 102 genes are there, whereas on a Y chromosome it is only 10 in number. Now example, we are having to have Drosophila melanogaster has a 4 linkage group. तो बेटा उसमें number of chromosome कितने हैं टोटल, 4 pairs. ठीक है. 3 large and 1 small that correspond to the 4 pairs of chromosome. तो उसमें कितने हैं टोटल, 4 pair of chromosome. तो यहाँ पे 4 linkage group आएगा नंबर, 3 long and 1 short. और उतना ही उसमें linkage group है, 3 large and 1 small. Man has 23 linkage groups and same 23 pairs of chromosomes are also there. तो 23 pairs of chromosome, तो उसका haploid number आप देख लीजिए, तो 23 linkage group आएंगे. ठीक है. Among plants like garden peas has 7 linkage groups and because 7 linkage group, तो how many number of chromosome, ultimately it will be 7 only. And maize has 10 linkage groups and it is 10 pairs of chromosome. तो बेटा किसी भी क्रोमोसोम में पाए जाने वाले सारे जीन्स को जब क्लब टुगेदर कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप. Now factors affecting linkage. Beside the distance between the genes, the following physiological and environmental factors affect the linkage of genes. तो बेटा distance तो matter करता ही है उनके linkage के लिए, but there are other things that is physiological and environmental factors are also responsible for their inheritance. Like age. With एडवांसिंग एज द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लेसन. जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है क्रॉसिंग ओवर होने का चांस उतना ही कम होने लगता है. तो उसकी वजह से उन जीन्स के बीच का लिंकेज उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कंसिडर कर सकते हो. टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द चांसेस ऑफ कियास्मा फॉर्मेशन, डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. अगर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो बेटा जो कियास्मा यानी कि क्रॉसिंग ओवर के लिए जो क्रॉस बनता है उसको बनने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, और लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. क्यों? बिकॉज इंक्रीज द चांसेस ऑफ कियास्मा फॉर्मेशन. तो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, कियास्मा फॉर्मेशन का चांस बढ़ने लगेगा.
ठीक है। ओके, एक्सरे, एक्सपोजर टू एक्सरे रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, और अगर एक्सरे एक्सपोजर होगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी, उनको क्रॉस होकर के एक्सचेंज हो जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। Now significance. The phenomena of linkage is important in many ways. It greatly reduces the chances of the formation of new combination. तो बेटा क्या होगा इसमें, इट ग्रेटली रिड्यूस, कम हो जाएंगे किस चीज़ के चांसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन अ गैमेट्स, गैमेट्स में नया कॉम्बिनेशन जाने के चांसेस रिड्यूस होने लगेंगे। इट डज हेल्प इन कीपिंग द पेरेंटल, रेशियल एंड स्पेसिफिक ट्रेट टुगेदर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेरेंटल ट्रेट्स होंगे, रेशियल ट्रेट्स होंगे, स्पेशल ट्रेट्स होंगे, वो एक साथ रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम हो चुके हैं। ओके, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द वैल्यूएबल ट्रेट्स ऑफ अ न्यूली डेवलप्ड वेराइटीज, तो जो न्यूली डेवलप्ड वेराइटीज में जो लिंक्ड जीन है, उनको जो वैल्यूएबल ट्रेट्स हैं उसको एज इट इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन में बनाए रखने में हेल्प करेंगे। Linkage disallow the plant and animal breeders to combine all the desirable traits in a single variety. तो बेटा लिंकेज की वजह से सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो एक जगह नहीं आ पाएंगे। लिंकेज डिसअलाउ, अलाउ नहीं करता द प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स टू कंबाइन, कि एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को पूरे के पूरे उनके जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं उनको कंबाइन होने से के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। The fact that there are as many linkage group as the chromosome pair is an important evidence. ये आपके लिए मास्टर पॉइंट है कि जितने लिंकेज ग्रुप उतने ही क्रोमोसोम का पेयर। ठीक है, तो क्रोमोसोम पेयर इज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर द लोकेशन ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपका जो था कि दिस वन लाइक द नंबर ऑफ 4 लिंकेज ग्रुप, तो आपका उतने ही क्रोमोसोम, द लिंकेज ग्रुप नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, so this was all about the linkage group. Okay, do this much for today.